Hello everyone, welcome to Champions of Akash. So the champion that we are going to be meeting right now has gone through some major personal setbacks but has never given up and performed exceptionally well in NEET 2023. Let's welcome Shashank to the stage with a huge round of applause. तो आपने मेडिसिन क्यों चुना? From the very beginning, since I was in class 10th, मुझे ऐसा फील हुआ कि डॉक्टरी being a doctor was a good profession for me. My mother was from medical background as well. That prompted me to get into medical. And also I have seen मेरे फैमिली में मेजरली इंजीनियर बने हैं, तो why not there should be a doctor. अगर हम आकाश की बात करें तो आपने आकाश किस क्लास में ज्वाइन किया था एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है लर्निंग का? I joined Akash in class 10th. In the very beginning, I took Akash Digital for 1 year. When I was in class 10th, after finishing class 10th, I again gave ANTHE. I secured All India rank 5, and then I took a 2-year classroom program for NEET in Akash. I heard that you performed exceptionally well in ANTHE. तो ANTHE का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? Yeah, ANTHE is a very good exam to know your potential, where you stand in this country, where you lie in the competition, what you have to cover up, what mistakes you are doing, आप क्या ठीक कर सकते हैं, वो आपको अंदाज़ा लगता है तभी जब आप एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम देते हो और आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. आई एम श्योर इस जर्नी के ड्यूरिंग कई अप्स एंड डाउन्स आए होंगे जब आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए, तो क्या आप उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे? See, 2 years is not a short time. लंबा समय, बहुत समय ऐसे आते हैं जब आपको लगता है बहुत अच्छा नहीं लगता, कि लगता है मार्क्स भी नहीं अच्छे आ रहे. इवन आई एम डूइंग रिवीजन, लेकिन तब भी कुछ सही हो नहीं रहा. Those times come and go. There are also sometimes when you see that you are getting very good marks, you can do well in future as well. So that ups and downs will come, but it's all about how you manage them, how you go with the flow, and continue your studies efficiently. तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगते थे और आपने कैसे ओवरकम किया? मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा था पूरे 11th and 12th में, that was inorganic chemistry. Mostly because you have to these are it includes chapters which involves things you will learn it, you will memorize it, and then you will forget it after some time. So you have to revisit it again and again over a specific time so that it doesn't go out of your mind. Because if we don't revise it for a very long time, then चीज़ें भूलने लगते हैं, and there's not much you can do with if you don't memorize the things. तो एग्जाम डे वाले दिन आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रहा था? बिकॉज पूरे इतने सारे सालों की मेहनत एक एग्जाम पेपर पर, तो आपके दिमाग में उस टाइम पे कैसे थॉट्स आ रहे थे? आपने कैसे खुद को काम डाउन किया एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले? So exam was around 2 p.m. I had to reach center about 12:30. That was my reporting time. So from the very beginning, it was very clear in my mind कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से I will not force myself over exert to memorize things. If the things which I have done, I will try to keep it in my mind and move on without focusing much about the things which I have not done yet. So keeping that in mind, I thought I would go stress-free in mind without thinking much, and yes, of course, जो होना होगा वो तो पेपर में होगा ही. There are certain circumstances which can't be avoided. उसके बारे में तो सोच के भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं. कुछ सोच के फायदा नहीं है, लेकिन जितना अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, आई एम डेफिनेटली श्योर मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू यू. और ऐसा ही है हमारे इन फ्यूचर चैंपियंस के लिए. ये है नीट एस्पिरेंट्स एंड इनके कई सवाल हैं कि आपकी जर्नी को लेके आपने किस तरह से तैयारी की थी. तो आइए इनके सवालों का जवाब देते.
जी हाँ प्लीज। आपका रिवीजन पैटर्न क्या था 12th में 11th को रिवाइज करने का और साइमल्टेनियसली 12th को भी रिवाइज करने का? See, 11th, after finishing 11th, we get a certain time कि 12th अब दोबारा शुरू होने वाला, तो उस गैप में आई ट्राइड कि जितना मैंने पढ़ा है उस एक साल में 11th को, आई मेड नोट्स ऑफ इट, रिवाइज्ड इट लिटिल बिट, देन आफ्टर एवरी within also 12th when I was studying 12th, तो ट्राई करते थे वीक में एक बार तो एटलीस्ट वो चीज़ को देखें। इवन इफ यू आर नॉट कम्प्लीटली श्योर कि एकदम अच्छे से नहीं रिवीजन हो रहा है, तभी एक रीडिंग कम से कम मार लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर एक चीज़ को देखते रहेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाता है। नेक्स्ट टाइम यू विल रीड इट, यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर माइंड from the very beginning, so you don't have to read it with very focus the next time you have to read the topic which you are not getting stored in your mind. आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मतलब किसी पर्टिकुलर? Yes, I made short notes of for chemistry and biology specifically. I made short notes of NCERT as well, because mostly तो NEET है, NCERT पे ही based है, so that's the very basic thing which you have to do. मतलब शॉर्ट नोट में होना क्या चाहिए, लाइक जो कंटेंट आपको याद नहीं रहता उस हिसाब से? शॉर्ट नोट्स शुड बी लाइक दैट कि उसमें टॉपिक्स लिखे हो लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन ना किया हो, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडिंग आप उस टॉपिक्स को समझ जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद रखनी होती है। एक चीज़ होती है पार्ट आपकी थ्योरी, जिसमें आपको कोई टॉपिक कैसे पढ़ाया गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सेट रहता है। 2 साल में आपने इतनी पढ़ाई की हुई रहती है, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ आपको मेमोराइज कर दे, जैसे कि ऑर्डर्स हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हो गए, ईयर्स हो गए, इसमें तो आप कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते कि क्या, ये तो आपको एज इट इज याद करना है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू पुट इन योर शॉर्ट नोट सो दैट at the very end these important things will be in the back of your mind. Congratulations. Thank Firstly, I would like to ask, what kind of schedule did you follow? Because it becomes hectic and not all chapters require the same strategy. For me, I would say मेरा कोई schedule वैसे fix था नहीं। The thing with me was that कि किसी चैप्टर को पढ़ना है, पहले तो एक चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके बारे में हमें उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बाकी मेमोराइज वाली चीज़ तो खैर बाद में है, पहले तो हमें चैप्टर समझना है। चैप्टर समझने का जब पार्ट आता था तब मेरा क्या रहता था कि तब तक चैप्टर को नहीं छोड़ना है, तब जब तक उस चैप्टर के बारे में सब चीज़ ना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मेमोराइज वाली चीज़ बाद के लिए रखेंगे, ताकि विच वुड कम इन शॉर्ट नोट्स विच आई कैन रिविजिट अगेन एंड अगेन। एंड सी, इफ यू मेक वेरी गुड शॉर्ट नोट्स, आई डोंट थिंक फॉर any chapter you would require more than 10 or 15 minutes. शशांक, हमारी एक एज ये ऐसी होती है जो हमारे आसपास हो रहा होता है, हम उससे थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। तो जहाँ से आप आते हैं तो आपके आसपास के सभी दोस्त या कह लो कि स्टूडेंट्स जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आप कोटा नहीं जाएंगे और आप अपने घर पर रहकर ही पढ़ेंगे? From the very beginning, initially मैंने आकाश डिजिटल ज्वाइन किया इन क्लास 10th एंड फ्रॉम देयर 1 साल ऑनलाइन कोचिंग हुई। सो फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि देयर इज नथिंग स्पेशल कि आपको जाना है कोटा बिकॉज टीचर्स अच्छे हैं। दैट्स नॉट द केस, टीचर्स हर जगह अच्छे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना खुद से प्रिपेयर करते, कितना आपका कंसंट्रेशन है, कितना अच्छे से आप एफिशिएंटली स्टडी कर सकते हैं। 1 साल मैंने पढ़ा, आई यूज इट फॉर 1 year। NTSC का एग्ज़ाम उस बीच हुआ, मैंने वो भी दिया एंड आई क्रैक्ड इट एज वेल, एंड सो इट मोटिवेटेड मी कि देयर इज नथिंग वेरी मच कि दैट इज एन ओवरहाइप कि कोटा जाना ही जाना है। दैट्स नॉट वेरी स्पेशल, यू कैन स्टे एट योर होम, स्टडी एज वेल। You have the material, if you have the teachers, if you have the content, you can watch it and you can crack any exam you want. तो आकाश का जो करिकुलम है, जैसे आपने बताया कि आप पहले डिजिटल में थे एंड देन यू गॉट चेंज इनटू अ क्लासरूम प्रोग्राम, तो उस करिकुलम में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी? द बेस्ट थिंग अबाउट इज कि टीचर्स मिले, अच्छे से स्टडी हुई, वी गॉट
study material also, which helped us to build concepts. Akash study material is of course very good. The best thing about it is that is directly derived from NCERT. So if you read it, you don't need to go back to NCERT again. The all the topics of NCERT are covered in it as well. If you want to study for NEET, then Akash study material is gonna be very good for you. The exercises are also very good. You can solve it. You can judge yourself. There are in-text questions as well, which improve your learning. So Akash's curriculum, your hard work and obviously your parents' hard work is the reason कि आप आज इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं. तो आपके मम्मा ने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन द स्टेज एंड उनसे भी थोड़े सवाल जवाब करते हैं प्लीज. या प्लीज. सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई हो शशांक के इतने अच्छे नंबर आए हैं. मुझे पता है पूरे टाइम आपने इसको सपोर्ट किया होगा, पर इस जर्नी के ड्यूरिंग हमें जैसे पता लगा कोविड के दौरान यू लॉस्ट योर हस्बैंड, तो उसके बाद से आपके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा. पर क्योंकि ये ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उस वक्त में आपने खुद को और इसको कैसे संभाला? देखिए, मैंने यही सोचा कि अब जो जाना था वो तो चले गए, अब तो जो है तो उसको संभालना है. इसका पापा को बहुत अरमान था, अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट शुरू से ही रहा है, तो उनको बहुत विश्वास था कि करेगा. तो हम इसको वही समझाते रहे कि पापा का जो सपना था उस सपना को तुमको पूरा करना है, और इसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट कभी लगाना नहीं पड़ा. ये अपना कंटिन्यूएशन अपना 100% देता रहा. रिजल्ट भी सब दिन अच्छा ही रहा. कभी आई एम श्योर उस टाइम पर बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं एंड जब ऐसा कोई पर्सनल लॉस होता है तो बैक ऑन ट्रैक आने के लिए काफी टाइम लग जाता है. तो आपने अपने आप को उस टाइम पर कैसे संभाला एंड यू फोकस्ड ऑन योर गोल? हाउ डिड यू मैनेज? दैट टाइम जस्ट हमारे 11th क्लासेस स्टार्ट ही हुए थे. आई गेस 1-2 months हुए होंगे. That time for about 1 and 2 months I was completely out of my studies completely because there are many things going on at that time. So after those 1 or 2 months I did I just focus कि अब जो backlog बना है वो आगे file up now. That thing कि जो चीज़ चल रहा है उसको तो कंटिन्यू रखना ही है. That can't be undone, which anything which is done can't be undone. So for after that for जो भी backlogs था 2 months का, I tried to cover them up as soon as possible, pile up now. And after that classes continued, I studied, and then over a period of 2 or 3 months I covered it and then joined the flow. You joined the flow. पर आई एम श्योर कि इस टाइम पर यू माइट हैव गॉन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स. मैम, जितने भी बच्चे हैं अभी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लेट्स से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को आपकी क्या सलाह रहेगी कि वो इन चीजों पर फोकस करें? मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है पेरेंट्स को नज़र नहीं रखना है बच्चे पर, नज़र तो ज़रूर रखना है, लेकिन प्रेशर नहीं देना है कि इतना करना ही है. बच्चे को यही बोलना है कि ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तुम कैसा करोगे तो अच्छा कर सकते हो, ये तो बच्चा ही सोचेगा. पेरेंट्स तो उसके बदले पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. इसीलिए नज़र रखिए, लेकिन प्रेशर नहीं बनाइए कि इतना करना ही है. ध्यान रखना है पर प्रेशर नहीं डालना है, जैसे कि मैम ने कहा. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग अ चैंपियन ऑफ आकाश शशांक. इट हैज बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you.